तो कंसिस्टेंसी पे हमने इतनी बात कर ही ली है, तो बच्चों को बता तो हम बहुत ज्ञान दे देते हैं कि कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे, मतलब अगर उनको जानना है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट या हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑन दैट? देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक रैंडम स्ट्रेस एनजाइटी तो होती रहेगी इस पूरे 1 मंथ में, बट यू नीड टू सी कि तुम्हारा अगर कॉलेज कितना अच्छा कॉलेज मिल गया तो दैट शुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, दैट शुड बी बिहाइंड, एंड लाइक यू शुड पुश योर सेल्फ, लाइक इट्स दिस 1 मंथ जो तुम्हें लाइक अगले 3 साल के लिए सेट कर देगा। सो दैट यूज्ड टू बी मोटिवेशन कि मतलब अच्छा कॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। सो Hi everyone, my name is Viraj and today we are having our new episode of Topper Talk series. Welcome to Exam Factor and we are having our new guest today. So they are topper from Hindu College and also from Hindu College. तो इनका नाम है वान्या एंड शिवानी। तो ये लोग जो हैं CUT UG के टॉपर हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने 100 परसेंटाइल जो है बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में भी 99.9, इन्होंने इंग्लिश में 100 परसेंटाइल, अकाउंटेंसी में 99 एंड समवेयर अराउंड 99 इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो मोस्टली 100 के क्लोज ही हैं, मतलब अगर आप टोटलिटी में देखें तो यूनानिमसली आई कैन कॉल देम टॉपर, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वान्या, यू कैन स्टार्ट। Hi, I'm Vanya Mehra. I'm currently pursuing BCom Honors at Hindu College and I'm from Delhi. I'm in my first year. And talking about college, as people say, there's a unique charm about North Campus. So if you get into a college, you can definitely experience that. Shivani, you can also introduce. hi there, I'm Shivani and I'm pursuing BCom Honors from Hindu College too. And if you don't find me in class here, I'd probably be out exploring Delhi's cafes and fun activities. And I think that's where I actually will be. So yeah. Okay, so let's talk about their journey also कि ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे और क्या क्या मेहनत लगी बैकग्राउंड में। Okay, so let's start. Okay, so starting with, I scored around 780 in my CUET. And considering the subjects, I gave accounts, business studies, English, maths, and economics. And the third was the general test, which is a part of CUET. So in my accounts, I scored 99.9 percentile, as well as in English, I scored 99.9 percentile. And other than that, economics and business studies, I scored 100%. So that was 200 out of 200. And these 4 were the main subjects that were counted in for my admission process. That is the top 4 that is counted. And in my maths also I scored good, which was 99 percentile. But according to the marks, because of normalization, it got little reduced. So it came up to around, I guess, 167 or something. And general test, I'm not quite sure, but it was somewhere along the lines of I scored around 94 to 95%. So that was where I was left. Okay, and you, Shivani? Okay, so I had a total score of 776 out of 800 and I got 100 percentile in English, and besides that in every subject like I had like around 5-6 marks deducted, and for me also the 4 subjects marks were calculated, that were economics, accounts, business studies and English. So yeah, that was it. Okay, so स्कोर देख रहा था मैं जो लास्ट टाइम भी, तो मेरे को भी एक ना कॉम्प्लेक्स मिल रहा होता है इस चीज़ से कि भाई 780 कैसे लाए, 776 कैसे लाए। Raw score, I actually scored 788. 788? Yeah, I had only 2 questions wrong out of the 160 questions that were there. अरे बाप रे। So when I tell my juniors that, they get very intimidated. They're like, 2 questions किसके wrong होते हैं? But it is. मतलब मेरे को अगर आप एक आंसर शीट भी दे देंगे ना तो OMR में आई थिंक मैं 2 तो ऐसे ही गलत कर दूंगा। ये भी हो सकता है। एंड उसमें आई स्कोर 788 और उसके बाद इट गॉट रिड्यूस्ड, लाइक 11 अराउंड 11-10 मार्क्स गॉट रिड्यूस्ड, फिर इट केम टू 780 अराउंड। कि बहुत लोगों को बिलीव करना मुश्किल बिलीव करना मेरे को भी होता था, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू माय सीनियर्स, लाइक हमारे भी 788 या 792 आए थे ना। आंसर की मिल जाती है क्या पहले? हाँ, देयर इज लाइक 2 एक आंसर की गेट्स अपलोडेड। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आंसर की पेपर से पहले तो नहीं मिल जाती।
बट देयर आर Yes, sir. पीपल जिनके 800 में से 8 हाँ, we have people. I have friends in political science honors who score 800 on 800, and that is also very hard to believe. Like हाँ. very. But there are people who are very thorough with things. So It's like there are always people ahead of you. you. There's always people ahead. There's always people behind. तो आप लोग एक दूसरे को कैसे मिले, मतलब कॉलेज में ही या पहले से ही जानते थे? College. We met in college. कॉलेज So we have a very unique story of how we met. So we call our so we both love chai. So we say that chai was the factor that made us meet. So it was basically like we had been in college since 3-4 months. So we met in December and college started in July. So we never met in this particular 4-5 months that we're there. So in December, one of our friends, like common friends, made us go out to have like, we were all chilling and we were like, kahin chai peene chalte hai, because it was thand. And we were like, chai peene chalte hai. And we went, and that is the first time I talked to her. And that was the day we clicked. And uske baad se we are best friends. यू आर बेस्ट फ्रेंड. Yeah. Like that is a unique, जैसे हम ऐसे वो करते हैं कि चाय इज आवर फैक्टर, बॉन्डिंग फैक्टर. तो हमने वो बना रखा. तो जो है कॉलेज की जो फ्रेंडशिप रहती है ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है. आई थिंक जो सबसे Like it is difficult to find friends, I'd say, in college because people are so diverse, like from different backgrounds, the way they are बहुत different होता है. I'll say mindset नहीं match हाँ, होता. mindset नहीं मैच होता. Like ये चीज़ मैंने notice करी. Like जब जिसको like when you're in the same school, so you're probably from the same area, you've grown up in the same, so आपका mindset काफ़ी चीज़ों में same होता है. But when you're coming from so different places, तो meeting at that one place, लोगों से mindset match करवाना, लोगों से like reaching that common ground is difficult. बट डाइवर्सिटी जो है वो अच्छे भी हो सकता है, अच्छी भी हो सकता है, बुरे. हाँ, that is also a क्योंकि good thing. you get to know Yeah. about their culture, about their lifestyle. Like most like जो MP के लोग या कहीं और के आ रहे हैं, they also wasn't able to adjust. हाँ. Like होता है थोड़ा कि people from different backgrounds, they take time to adjust. But when you know and when you mix up, तब you get to know a lot of things. Like दूसरे लोगों से friends, like when you become friends with them, तो उनके culture, उनके क्या background है, and उनका कैसे the way they were brought up. So that is like a new thing to learn because we are from Delhi and like I am from Delhi and Delhi लोगों का इतना वो होता नहीं है ऐसे background and that people talk about. तो like I love to get to know that. Like It's a new learning yeah, it's a new experience. learn. So मैं प्रिपरेशंस के बारे में पहले जाने से पहले कॉलेज पे आते हैं कि हाउ इज़ हिंदू कॉलेज. अगर आपको सम अप करना हो जस्ट वन वर्ड में, तो व्हाट वर्ड विल यू यूज फॉर हिंदू? It's like a great place to fit in. Like Like as a college, I'd say very lively. Like that is one thing that I've noticed. Like you will go into Hindu, like I'll tell us, we both will literally go into Hindu. We'll have normal college days and there's something happening. मैं भी गया नहीं हूँ, मुझे जाना है. no, but the college in itself is very active. Very active. Like Like कुछ ना कुछ events हो ही रहे होते हैं. there are around 40 societies in our college, like 20 are the main societies. So these societies are operating all the time. So there is like Some event or the other. like arts, like we had recently, I guess day before only, we had this art town in our college. So the whole college was decorated. Then we have dance society events. So if you go into Hindu, you'll always find something happening, and You'll always people find that auditorium somebody has came. हाँ. Some guest, some speaker, some. So तो आपका जो लर्निंग जो है एक्स्ट्रा करिकुलर वाला जो है वो बहुत इम्प्रूव, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता क्योंकि है. जो एक्सपोजर वहाँ उस चीज़ों में मिलता है वो स्कूल में कभी नहीं मिलता. लाइक स्कूल में जो एकेडमिक्स, अच्छा बोर्ड्स करना है, ये करना है, सो उसके अलावा गेम पीरियड हो गया हाँ, और थोड़ा कुछ ऐसा. तो इट्स लाइक हम कभी कॉलेज में से क्लास करने का नहीं मन करता, हम निकलते हैं एंड वी गो इनटू द ऑडिटोरियम, कुछ ना कुछ हो रहा होता है. सो वी हैव एंटरटेनमेंट सोर्सेज बहुत सारे. गेम्स पीरियड एंड ऑल स्कूल में हमारी स्किल्स बूस्ट अप नहीं हाँ. होती. यहाँ पे हमें एक्चुअल स्किल्स मिलती है And जो you हमें also एक्चुअली काम participate आएंगी. in those events also. Like I'm in 4 societies, so उसमें बहुत एक्सपोजर मिलता है. लाइक जैसे I'm in a consulting society, तो उसमें हाउ यू डील विद कॉर्पोरेट पीपल, लाइक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, हमारे एक्चुअल क्लाइंट्स होते हैं, वी डू प्रोजेक्ट्स. सो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है दैन थिंग्स दैट यू हैव डन इन स्कूल, या वो चीज़ें एक्सपीरियंस आपको कभी मिल नहीं सकता वैसे. तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड वो भी ऐसे होता है कि ये सोसाइटी वाला कंसेप्ट भी बहुत पर्टिकुलर कॉलेज में ऑपरेट होता है. लाइक नॉर्थ कैंपस में स्पेसिफिकली, लाइक यू वुड फाइंड मिरांडा में इतना नहीं है.
Miranda is very famous, but still उसमें इतना concept नहीं है. This is particularly limited to SRCC and Hindu and Hansraj. इसमें बहुत ज़्यादा like है. Like हमारे college में जो नॉर्थ विश्वविद्यालय जो उधर का है, तो वो मैंने बहुत सुना है. मतलब उनकी सोसाइटीज ही एक्टिव होती है, इसीलिए इट इज नोन. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉलेज में जाके एकेडमिक्स कोई नहीं पूछता आपसे. आप पढ़ रहे हो, उसमें भी आएंगे. आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो इतना नहीं मैटर करता. इट्स मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी बिल्डिंग. दैट्स द मेन थिंग दैट इज कॉलेज इज ऑल अबाउट. लाइक आपको इतने लोग मिलेंगे. लाइक आई मीट सो मेनी पीपल सीनियर्स एंड उनसे बात करके इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस कि दे आर डूइंग सो मच इन लाइफ. So you get motivated. मेरा perception is college is all about building contacts. Like you actually network एक अच्छा network build up होता है. Very good. And plus there are so diverse people, तो तुम्हें हर टाइप के बंदे से बात करने का opportunity मिल जाता है. And you get to know the whole India in one campus. Everyone is also very helpful. Yeah. हिंदू में भी like from what I have seen, आप किसी को भी contact कर लो, you message a random person, they will always reply. They will always help you figure out where you are going, where you are doing wrong. Like that is what I think about the people is a very good thing. Like people are really I think that's how Hindu is special. हाँ, Hindu is special. बाकी जैसे मेरे कॉलेज में क्या होता था, जब मैं बिट्स पिलानी से पास आउट हूँ, तो जो मेरे कॉलेज की जो अगर सबसे अच्छी बात थी, दैट वाज 0% अटेंडेंस. हमारा ये तो हमारे से शुरू हुआ है. लाइक फ्रॉम दिस ईयर ओनली इट स्टार्टेड कि हमारी अटेंडेंस के ऐसा होता था कि मोस्टली कॉलेजेस में प्राइवेट में भी होता है कि यू हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर परसेंटाइल ऑफ अटेंडेंस. बट हमारे में ऐसा होता है अटेंडेंस के मार्क्स सकते हैं. अटेंडेंस के मार्क्स सकते हैं. लाइक हमारे 11 मार्क्स आउट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट अटेंडेंस के होते हैं. सो दैट इज लाइक एन इंसेंटिव कि अब जाना ही पड़ेगा. बिकॉज़ 11 नंबर इज अ वेरी बिग थिंग. इट कैन चेंज योर बिल्कुल स्कोर. It has changed my life. तो है मोटिवेशन थोड़ी बन जाती है फिर कि चलो चले जाते हैं. और प्रोफेसर्स के लेकर के क्या रहता है कि जैसे प्रोफेसर्स लाइक हमारे लाइक अब इस सेम में वी हैव दिस प्रोफेसर. सो प्रोफेसर्स the way they are like it depends honestly. The type of teachers also depends. So हमारा एक जो एक प्रोफेसर है वो he's so hard working and वो हमें बहुत motivate करता है. I think that has helped. Like he has written books and all of that. So वो like the way he talks, the way he asks us to like study and उनका perception on things is very different. तो I think वो एक factor होता है to push us to go forward. I mean, he actually wants to impart knowledge, like Yeah. not just कि पढ़ा के चला. Actually wants students to learn. हाँ ऐसे होते like I've seen professors ऐसे बहुत होते हैं like they are like just restricted to the syllabus. But touchwood ऐसा नहीं होता. Like हिंदू में ऐसे बहुत teachers हैं who actually want you to grow as people. Like ऐसा होता है ना कि स्कूल में अगर आप कुछ कर रहे हो एक्स्ट्रा और अगर आप टीचर को बोलो कि I have to do this thing, they will be like no तुम पढ़ाई पे फोकस करो. But वो actually आपको बहुत करते हैं मोटिवेट. लाइक अगर मैं बोलूँ जाके ना कि मेरे को इस चीज़ में जाना है and I wanna go in this, can you please give me a leave या वो सब, they will be there for you. So I think that is a very good thing. And that professor is actually a founder of 2 societies. हाँ in a college. So like उनसे like when you talk to them it's like it feels so good कि अच्छा there is so much to do in life. So that sense of belonging. Yeah. तो मतलब वो भी एकदम फैमिली मेंबर टाइप ही जो है. हाँ वो बहुत फील करवाते हैं. हाँ like वो ऐसे like he even addresses us as friends. Hi friends. Hi friends. हाँ so we feel very informal उनके साथ कि अच्छा कर सकते हैं उनसे बात. ओके. और इसके अलावा जो है जैसे फेस्ट का जो मैं बहुत सुनता हूँ कि हम भी वेट कर रहे हैं हमारा हाँ. फेस्ट कब होगा. कौन से फेस्ट होते हैं, ठीक है. स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, मतलब एज अ स्टूडेंट आप क्या सीखते हो उसमें, जैसे स्पॉन्सरशिप लेके करके आना कुछ ऐसा इस तरीके के लिए. So first of all, Hindu ka fest is like considered the best fest in North Campus. Okay. It's called Mecca, and like it's like a 3-day event. Okay. And like you know कल्चरल फेस्ट. yeah cultural fest and like बहुत अच्छा मनाते हैं हमारे कॉलेज का. बाकी we'll see अभी जब होगा. And about the student participation, like जैसे कि मैंने sponsorship का task कर रखा है, तो you actually get to know कि how you talk to people, how do you like convince them. तो like बहुत सारी soft skills develop होती हैं and ऐसे बात करके and all. And plus like मैंने database वाला काम भी कर रखा कि you get this database and you need to make calls like cold calling basically. So I have done that and उससे भी like तुम्हें पता लगता है कि how to talk to people, new people. बहुत experience मिलता है basically.
Same. So I'd say कि हमारा fest, like as she said, is considered the best. अब पता नहीं कैसा होगा, but it's like क्योंकि it's about the charm. Like I've seen this. हमारा college, like they put a lot of effort into the fest, and apart from the annual fest, this is our annual fest of the college. We do also have society fest, like particular to every society. So I think like she said, I've also done a lot of cold calling, and I actually converted a sponsorship for my fest. So that was a perfume like related company that I converted. So that was like as our gifting partner. So I think I learned a lot on how to actually, first of all, obviously convince people, how to talk into the corporate world. What, like, you know, reaching deliverables on a consensual basis was something that I learned in that front. So it was a good experience that way. And management skills get a lot improved, like according to the vertical that you go in. Management skills, how to prepare, be it the decoration टीम and anything. स्पिरिट कैसे है, टीम कोलैबोरेशन, Team collaboration, exactly. या Leading आपको the team. हाँ, लीडिंग द टीम एंड बीइंग अ टीम मेंबर आल्सो समटाइम्स. तो फेस्ट का हमने देख लिया कि किस तरीके से आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स का क्या क्या रोल रहता है, प्रोफेसर्स कैसे हेल्प करते हैं, आपका पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, और प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे इनकलकेट होता है कॉलेज लाइफ के अंदर. अब हम चलते हैं थोड़ा बैक, थोड़ा पीछे, 1-2 साल पीछे, जब आप कॉलेज में नहीं आए थे, तब आप कैसे जो है परसीव कर रहे थे, आपका क्या गोल रहता था. जब आप 11th में रहे होंगे या 12th में रहे होंगे, तो तब आपको कितना अवेयरनेस था कि कॉलेजेस क्या होते हैं, आइडियल कॉलेज क्या होगा, और आपके माइंड में क्या था उस टाइम एक कि दिस शुड बी माय आइडियल कॉलेज और यहाँ पे मुझे जाना है, क्या 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 था? दोनों से मैं एक एक आंसर चाहूँगा इसमें. Okay, you can start. Okay, so 11th 12th में लाइक मेरे को आई थिंक 12th में जाके कॉलेज का लाइक मैंने इतना सोचना था कि लाइक विच कॉलेज टू गो. आई हैव ऑलवेज बिन कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है. बट देन जब SRCC का एंड ऑल पता लगा, हुआ एंड ऑल, ओके, तो SRCC हैज़ बिन माई ड्रीम कॉलेज लाइक 12th तक. एंड देन लाइक CUET and all, it's always been SRCC, but like once I got into Hindu, I like found my place here basically. So I'm very happy to be a Hindu. Okay. And आपका? Same with me, like 11, 12 say I was on the path कि yeah, I have to get into Delhi University because both my parents are pass outs from KMC. So they were always in the Delhi University. They were like, yeah, yahi jana hai because it's very renowned also and professors are good and everything. And jo mind bana tha, that started from 12th ki I started targeting colleges. So it was, for me, it was always SRCC, Hindu and Hansraj. So it was like these 3 top colleges that I have to get into. I was like, isse niche, like these are my target. Like isse niche I don't want to go. So I always envisioned myself there, and मैंने उसी के हिसाब से like I started कि इस ब्रैकेट में स्कोर लाना है ताकि एटलीस्ट these three targets I can get. And SRCC, I'd say for every commerce student, SRCC is the dream. But it's also kind of a difficult but achievable dream. It depends. So like हमारा score was also very near to SRCC की cutoff. So it's like it's that one benchmark that you want to achieve. But like she said, it's like we are very happy in Hindu. Like जितना competition, when we talk to people and friends from SRC, जितना competition वहाँ है, maybe we wouldn't be able to survive there in that competition. So वो थोड़ा लगता है. It's like 800 students में वो opportunities बढ़ रही है, यहाँ पे like 100 के around students में बढ़ रही है. So there is a lot lesser competition, lot more opportunities. Yeah. Okay. तो total campus का strength कितना है? I think around 2-3,000 तो होगा. Like there are around 17 courses in our college. So हमारा particular courses I think holds the highest number of students, that is 120 students. And बाकी में there are usually 100 or like going up. मतलब it keeps decreasing like. So आपने कौन सा कोर्स आपने परस्यू कर रहे हो बेसिकली? BCom honors. BCom honors. बहुत. Okay. तो बाकी कोर्सेज जो आर्ट्स के आई थिंक उसमें थोड़े कम स्टूडेंट्स हैं, एंड साइंस में भी थोड़ा वो. Sociology, botany में like there is a class with 40. Yeah. Okay. So it keeps decreasing as we go. Like BCom honors and Eco honors is the high. ये दो जो है टॉप. ये highest students है तो सबसे. हाँ.
in our कॉलेज में जाके ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे ये कोर्स लेना चाहिए था, ये गलती से? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं लगा? हमारे कॉलेज में बीकॉम वालों लाइक बीकॉम एज अ कोर्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ रेपुटेशन। एक बहुत रेपुटेशन लाइक ये हाँ ये तो है कि कोर्स हमारा स्टार्टिंग से डिसाइडेड था। लाइक आई वाज ऑलवेज वेरी गुड एट अकाउंट्स 11th-12th में, सो फ्रॉम द स्टार्ट आई वाज लाइक आई हैव टू परस्यू समथिंग इन लाइक अकाउंट्स ओनली, सो आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट फ्रंट पार्टिकुलरली। ओके, तो इस पे भी अभी आएंगे हम कि यहाँ से आगे कैसे क्या क्या करियर पाथ रहते हैं। तो हम पीछे ही थोड़ा सा भी ट्रेस आउट कर रहे हैं चीज़ों को कि वो जाने का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपको कब पता चला कि ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, और उसके जो बेसिक पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ये सब चार्ट आउट कैसे किया प्लान बेसिकली? ओके, सो मेरा लाइक आई एग्जैक्टली क्लियर जब हुआ था मेरा पाथ कि हाँ CUET देना है या नहीं करना है, दैट स्टार्टेड 12th की स्टार्टिंग। So I had a number of seniors who were in contact with me and some family friends. So I used to talk to them like starting में कि like कैसे करना है prepare, how difficult is it, and जो मेन था कि जब मैंने सारा एफर्ट अपना पुट करना शुरू करा था तब वॉज ऑब्वियसली दोज लास्ट 2 months जब आई टॉक टू एवरीवन, बट उससे पहले आई यूज्ड टू टॉक टू थोड़े से लाइक सीनियर्स एंड एवरीवन टू हैव अ क्लियर पाथ, क्योंकि जो पैटर्न है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है CUET का। लाइक फ्रॉम पीपल जो बोर्ड्स देते थे थोड़ा आइडिया नहीं होता लोगों को, एंड इवन पीपल हु गेव CUET लाइक जो फर्स्ट ईयर था वो भी थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि नया एग्जाम था इस वजह से। तो इसलिए आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग पीपल जिन्होंने दिया था कि उनके एक्सपीरियंस थोड़ा पता लग सके कि कहाँ मैं लाइक कहाँ मेरे को वो अवॉइड करनी है चीज़ें। सो दैट्स व्हाट आई डिड। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस से आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसे होना है एग्जाम्स, एंड फिर ऑब्वियसली वीडियोस भी बहुत थे यूट्यूब पे, इफ यू गो पीपल डू शेयर, तो यू कैन ऑलवेज वॉच वीडियोस, पीपल आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, बाकी रिसोर्सेज होता है। आज हम भी यही कर ही रहे हैं, ठीक है, कि जिन बच्चों तक अगर हमें पहुंचना है उनके अगर कुछ डाउट्स टेकअप कर पाएँ, जो जनरल है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा बच्चों के जनरली डाउट क्या रहते हैं। So I think this is exactly, I was in the position of watching these kind of videos like a year back. I used to search की CUET related questions, doubts. I used to watch those videos ताकि मेरा भी clear हो सके. So उसमें भी different opinions आते थे, but at least थोड़ी clarity मिलती, क्योंकि someone जो like someone who is teaching, जो पढ़ा रहा है उसको मे भी इतना idea ना हो जितना जिसने actually attempt करा है उसे होता है. So I think that's the best thing you can get. Okay, so 12th के में I started like मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो तब I decided, and उसके बाद like I started going through the curriculum. तो I'll say कि बहुत confusing है CUET का curriculum, the subject selection, the course selection, the college बहुत hectic है, तो you need to like thoroughly understand before you do it, because एक mistake will like really pull you down. तो वो था, एंड उसके साथ लाइक ऑब्वियसली आई टॉक टू लॉट ऑफ माई सीनियर्स एंड ऑल कि हाउ डिड दे गो थ्रू इट, अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स आई वॉच दैट रियली हेल्प मी देयर. So yeah, that's how it went, but a thorough check is really important. I think you need to understand the pattern is the most important thing, because people end up making mistakes. Like we are so indulged in the process of studying that we forget कि अच्छा actually figure out समझना इतना important है. Like वो questions वाला होता है कि 50 में से 40 attempt करने होते हैं, but लोगों को ये नहीं पता. लोगों को ये नहीं हाँ, पता. ये बेसिक डिटेल भी नहीं पता. मैं भी जब वेबिनार कंडक्ट करते हैं हम लोग कभी यूट्यूब पे, तो बहुत सिली क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो हमें लगता है कि यार ये तो पता ही होना चाहिए था कि एक एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन कितना है, ये सब, पर हम एक्सपेक्ट नहीं करते. तो हमें हर बार वी ट्राई टू रीआइट्रेट कि जो भी नया ऑडियंस इसको देख रहा है तो वो उन बेसिक डिटेल्स को मिस ना कर जाए. एंड इवन डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, तो लाइक यू नीड टू बी वेरी थरो. लाइक जैसे एक था कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन CUET, सो इट वाज लाइक -1 नेगेटिव, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इवन टिल द रिजल्ट्स केम इन दे यूज्ड टू थिंक कि यार मेरे 780 आए हैं, मेरे तो लाइक 20 गलतियां तो हो ही नहीं सकती. एंड आई वाज द वन टू टेल देम कि -1 डज नॉट मीन एक्चुअली -1, इट मीन्स -6, because 5 marks go for the question you did not attempt, and it's then -1. So they were like इतनी गलतियां तो हमने करी नहीं, and I was like ऐसे नहीं होता. So वो चीज वो सोच रहे हैं कि +5 तो आ ही गया, उसमें से एक माइनस हो गया. and I was like कि ये चीजें बहुत फोकस करनी होती है. तो ये चीज भी I didn't know, ये भी मेरे को किसी फ्रेंड ने बताई थी कि अच्छा ऐसा होता है. So that was like कि एक मिस्टेक cost you 6 marks.
तो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, मेक्स अ बिग डिफरेंस, तो उसको फोकस करना पड़ेगा। -1 नहीं लेना, -6 ही लेना। It's basically you should not attempt that question Yeah, if you you should don't not know. attempt. You should not attempt what you're not sure of. That's also I think an advantage in CUET कि आपको options बहुत मिलते हैं. Since you have to attempt just 40 questions. अगर आपको कोई topic नहीं भी आता छोड़ दो. कोई. अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न है आई थिंक उसमें ये है कि हमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स का जो है मैक्सिमम सिलेक्शन है हमारे पास। पहले 10 रहता था ये, तो अभी वो 6 है। उसमें से प्रेफरेबली हमें जीटी और इंग्लिश को जो है वेटेज देना है कि जीटी और इंग्लिश को भी रखना है, और डोमेन सब्जेक्ट आप 3 से 4 3 आप रखिए, जो भी आपने बोर्ड में लिया था आप उन 3 डोमेन सब्जेक्ट को, एक इंग्लिश जीटी, और अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो आप उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बो के साथ आपको सीयूटी देना मस्ट रहेगा। इससे क्या होगा कि जीटी और इंग्लिश से ही बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट के अलावा, डोमेन जैसे आपके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ है, अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट लेते हो तो कॉमर्स डोमेन के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये ऐसा कोर्स है, या आपको थोड़ा एग्ज़ाम देने के बाद में पता चला कि अच्छा ये कोर्स है जो मेरे को कहीं और लेके जा सकता है, मेरा करियर पाथ ऐसा कर सकता है, तो आपको जीटी और इंग्लिश काफ़ी हेल्प कर देंगे कुछ कोर्सेज़ के लिए। तो आपका जो स्पेक्ट्रम है कोर्सेज़ को सेलेक्ट करने का, चूज़ करने का यूनिवर्सिटीज़ में, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको स्पेक्ट्रम वाइड करना है तो जीटी और इंग्लिश को आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। आई थिंक यू बोथ वुड एग्री ऑन दिस। I'd like to add कि like for the new course जैसे कि BMS, BFIA जो सब आए हैं, तो उन सब के लिए मैथ्स कंपलसरी है, so do check out. हाँ, like maths is a weak point for like many students. बट होता क्या ना, जैसे मैथ्स अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो हम उसको बोल तो सकते हैं कि हाँ आप मैथ्स ले लीजिए अभी, बट वो स्कोर नहीं कर पाएगा। बट अगर उसका 12th में रहा है, या उसने एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैथ्स को रखा है, अकाउंटेंसी के साथ मैथ्स लिया है, या जो है ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी कुछ लोग मैथ्स को ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्शन डोमेन सब्जेक्ट में करना पड़ेगा इस बार भी, और आप उससे पेपर दीजिए, आप अपना बेस्ट दे के आइए। जो भी स्कोर रहेगा तो वो बाद में देखेंगे कि कट ऑफ के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। आपका काम जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अच्छे से एग्जाम को देने का, ठीक है। लाइक मैथ्स में थोड़ा फोकस इज नीडेड, क्योंकि अटेम्प्टिंग लाइक 40-50 क्वेश्चंस इन दैट पीरियड, लाइक आपको अगर थ्योरी सब्जेक्ट आप कर सकते हो, बट सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इट्स ऑल अबाउट द स्पीड। लाइक इतना लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर बात करें, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट इट्स जस्ट कि आपको कितना एक्यूरेसी से आता है एंड आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। एंड वो चीज़ मतलब मैंने भी थ्रू मॉक्स वगैरह करी थी कि बहुत प्रैक्टिस करी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आ गया था नेचुरली मेरे को, कि मतलब आई रिमेंबर मेरा अकाउंट्स का जो पेपर था, इट गॉट फिनिश्ड इन अराउंड 20 minutes. 20 minutes. And I was like, for that 25 minutes, I was just sitting in the exam. कितना परसेंटाइल था? 99.9. और वो एक क्वेश्चन जो मेरा गलत भी हुआ था। 1 घंटा मिला होगा ना आपके इसके लिए? 45 minutes मिले थे शायद। इस अकाउंट्स में, अच्छा अकाउंट्स में 60 थे, अकाउंट्स में 60 थे, एंड मेरा ऐसे खत्म हो गया था 25 मिनट्स में। एंड आई केम एंड माय मॉम से कैसा गया पेपर, एंड आई वाज लाइक मेरा तो 20 मिनट में खत्म हो गया, आपने तो कहा था डिफिकल्ट आएगा। तो वो होता है, मतलब इट वाज बिकॉज आई थिंक इतना प्रैक्टिस कर चुकी थी मैं कि मैं इतने थरो थी। उस पे भी जो है हम एक डिटेल डिस्कशन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का रहता है कि प्रैक्टिस का जो पार्ट है वो मॉक्स के थ्रू लास्ट तक आते आते, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अब उनके पास 1.5 मंथ है, तो 1.5 मंथ में क्या उनका जर्नी रहना चाहिए। जैसे आप अभी बोर्ड दे चुके थे, आप इसी स्टेज में रहे होंगे, ठीक है, आपने बोर्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश किया था, बट आपको पता था कि इस स्कोर से मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकता, एक स्प्रिंट और रिक्वायर्ड होगा जो कि लास्ट में CUT तक का होगा। तो इस टाइम पे क्या करते थे आप? 10 अप्रैल या 9 अप्रैल को उस टाइम पे क्या कर रहे होते थे? आपका डेली स्केड्यूल, डेली रूटीन कैसा रहता था अप्रैल में? Okay, so first of all I'll say कि April is very mandatory for all the CUET aspirants, क्योंकि यहीं पे it's like a ride or die situation. Deciding factor था। Yeah, so like I'll say कि जिसकी
बात करूँ तो आई डेंट हैव अ वेरी रिगरस शेड्यूल और एनीथिंग, लाइक इट्स जस्ट कि तुमने सिलेबस ऑलरेडी सारा कर रखा है, सो इट्स बेसिकली कि तुम कितना अच्छा रिवाइज करते हो। एंड प्लस लाइक वो सब्जेक्ट सच एज अकाउंटेंसी एंड मैथ्स, तो वहाँ पे तुम्हें लाइक यू नीड टू हैव अ गुड स्पीड। सो उसके लिए लाइक अकाउंट्स एंड मैथ्स की मैंने क्या करे थे, मैंने बहुत सारे मॉक्स सॉल्व करे थे एंड आई पुट अ टाइमर कि उतने टाइम में कितने मॉक्स सॉल्व करे। और कितने ऐसे मॉक किए होंगे आपने टोटल? लाइक एवरी डे लाइक 1 or 2, से लाइक 40 तो करे होंगे। 40? मैंने 80 करे थे। आपने 80 किए थे? मेरे पास पूरी लाइक मैं एक ही साइड पे अटेम्प्ट करती रहती थी, सो लाइक मैं पूरा एनालिसिस करती थी कि हर मौका की क्या गलती हो रही है। सो आई रिमेंबर आई वाज लाइक आई हैड डन 80 मॉक्स, लाइक मैं बहुत मेहनत कर ली। आप लोग सुन लीजिए, 40 मॉक और 80 मॉक लगा के बैठे थे, ठीक है। अब ये एक मतलब जो फैक्टर निकल के आया ना कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने हैं, तभी आपका जो है एग्ज़ाम डे बहुत यूजुअल डे बन जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग, इन्होंने जो है 40 और इन्होंने कितना मॉक दिया, 80। अरे बाप रे। तो वो जो है 100% और 99.9 जो लिखा है ना वहाँ पे, वो सब इन्हीं की देन है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे जो पूरे आउटकम अभी तक का डिस्कशन से है कि मॉक बहुत देना है, ठीक है। 40 और 80 मॉक देने के लिए ना पहले एक सिटिंग जो आपको टेबल पे बैठने का एक टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको उसमें एक हेल्प कर सकते हैं कि हमारा जो महापैक का जो एग्ज़ाम फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है आपको, मॉक टेस्ट सीरीज़ का महापैक, तो उसमें हम लोग 40 से ज़्यादा और 80 से थोड़ा सा कम, एटलीस्ट 60 हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 60 भी दे के जाओगे तो आई थिंक यू विल लैंड अप समवेयर अराउंड 99 और 100, ठीक है। तो बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज होगा आप वहाँ पे लैंड अप कर सकते हो अगर आप 60 मॉक दे के चले गए। इस 60 मॉक में 6 सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे और हर सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 10 मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आप महापैक जो है इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो आप लोग वहाँ पर लिंक क्लिक करके आप ज़्यादा उसको एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू कैन परचेज ऑल्सो। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को मॉक के साथ साथ, जैसे कुछ लग रहा है कि मेरे को मॉक से के अलावा थोड़ा और गाइडेंस का भी ज़रूरत है, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट में लग रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं, तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ क्रैश कोर्स, ठीक है। हम लोग आपको एक कंटिन्यूस गाइडेंस देंगे CUT के एग्ज़ाम तक भी और CUT के एग्ज़ाम के बाद भी इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग। तो एग्ज़ाम तक हम आपको जो है पूरे सब्जेक्ट का थोरो रिवीजन, ठीक है, थोरो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, और जो कि लाइव लेक्चर्स के थ्रू कवर्ड होगा मेजॉरिटी पोर्शन उसका। तो हमारे जो मेंटर्स होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, इवन आई विल बी देयर, मैं फिजिक्स सब्जेक्ट्स लूँगा और कुछ जगह कुछ GT के पोर्शन भी कवर करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे 10 सब्जेक्ट जो हैं, साइंस के सब्जेक्ट हो गए PCMB, हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके पास GT इंग्लिश का कॉम्बो है जो बहुत बच्चों को परेशान करता है क्योंकि वो 12th सिलेबस से थोड़ा सा अलग रहता है। GT और इंग्लिश जो है जनरल टेस्ट का तो सारा ही सिलेबस अलग होता है, तो बच्चों को कोई अच्छा रिसोर्स ही नहीं मिल पाता। तो हम लोग आपको एक कंसाइज वे में रिसोर्स का क्लैरिटी भी देंगे और उसको पढ़ाएंगे भी, और थोरली आप मॉक्स के साथ अपना प्रैक्टिस का जज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेट मत कीजिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करके आप एग्ज़ाम फैक्टर की वेबसाइट पर रीच कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है और मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसका बेनिफिट उठाइए, और अगले 1-1.5 महीने में अगर आपको लग रहा है कि आपको एक गाइडेंस का ज़रूरत है तो इसको लेकर के आप अपना जो है CUT का जर्नी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और CUT के बाद भी हम लोग काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप आपको जो है कॉलेज जाने तक हमारी तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है एक बार अब बच्चों पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मॉक ज़्यादा देना है या इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना है या ज़्यादा मॉक दे के बाद में पढ़ना है। कि मॉक कुछ होता है ना, जैसे सिर्फ मॉक देते रहे, एनालिसिस किया ही नहीं, पता चल रहा है कि मार्क्स कम आ रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं। एक तरीका बच्चे का वो होता है। उससे क्या होता है, वो 2-3 मॉक देने के बाद वो बंद किया कि ये तो भाई मेरे तो नहीं हो रहा है, अगली बार देखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि भाई पढ़ते ही रहते हैं, मॉक दिए नहीं कि लास्ट डे पे ही देखेंगे, तो लास्ट डे उसको रियलिटी चेक एक ही दिन मिलता है कि देखो भाई नहीं हुआ, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला स्टेज कि आप मॉक दो
उसका एनालिसिस करो, जहाँ वीक पॉइंट है उसको रिवाइज भी कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करो। और ओवर द टाइम जब 2, 3, 4, 5 मॉक देते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैं इस स्टेज पे था और अभी यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो वो जर्नी तो आपने कौन सा फॉलो किया था एकदम मतलब अनफिल्टर्ड? फॉर वो कंटिन्यूस असेसमेंट वाला ही। सो इट वाज लाइक कि सिंस बोर्ड्स में सारा सिलेबस सीबीएसई, स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए सब सिलेबस कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। सो यू ओनली नीड टू फोकस ऑन रिविजन, यू ओनली नीड टू फोकस ऑन डिटेल्स। लाइक जैसे कहते हैं ना कि एनसीईआरटी, लाइक अगर आप कहीं भी वीडियो देखो एवरीवन इज लाइक कि एनसीईआरटी इज गॉड, एंड इट इज ट्रू फॉर सीयूईटी। इफ यू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका हो जाएगा। इसको नोट कर लो, हाँ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइक टू द पॉइंट कि आपको हर एक डिटेल पता हो। सो द सेम केस वाज फॉर मी कि मैं रिवाइज करती रहती थी, बट ऐसा भी नहीं होता था कि मैं रिवाइज ही करती रहूँ। आई यूज्ड टू पिक अप वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। दिस इज अ स्ट्रैटेजी आई फॉलोड। लाइक जैसे होता था इकोनॉमिक्स, आई यूज्ड टू गिव 5 days फॉर इकोनॉमिक्स, आई यूज्ड टू कवर एवरीथिंग, एंड उसके बाद बैठकर मैं सारे इकोनॉमिक्स के मॉक्स देती थी। फिर जिस चैप्टर में गलती आ रही है या जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलती आ रही है, मैं बस उसे रिवाइज करती थी। फिर आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा ये डन हो गया मेरा, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो इट्स लाइक स्टार्ट, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। बिकॉज ऐसा होता है कि सीयूईटी में ना जब डेट्स आती है इट्स वेरी अब्रप्ट। लाइक मेरी भी ऐसी आई थी कि मेरे को 2 दिन पहले पता लगा था तो 2 दिन बाद मेरा पेपर है। तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि हम एंड मोमेंट पे देखेंगे, वो कभी नहीं होता। सो यू नीड टू मेक अ शेड्यूल कि आप, क्योंकि अभी विंडो मिलता है उनको, शायद एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। हाँ, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती, आपको सिर्फ 2-3 दिन पहले पता लगता है कि आपका एग्जाम है। सो अगर यू विल थिंक कि अच्छा मैं तब मॉक्स दूंगा एंड मैं सिर्फ फुल सिलेबस मॉक्स दूंगा, दैट इज लाइक आप एंड में सोचोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू डू इट, लाइक आप पूरा एक सब्जेक्ट पिक करके आप मॉक्स दे सकते हैं। आई थिंक इट रियली हेल्प्स अ लॉट। आपको ये भी पता लग जाएगा आप सब्जेक्ट में कहाँ लैक कर रहे हो, आपको ये भी पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूव करना है, फिर आप उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो। और ये भी मतलब अगर मार्क्स कम, वर्स्ट केस क्या होगा, कम मार्क्स ही आ जाएंगे ना। इससे वर्स्ट केस क्या होगा, अगर आपका 100 में से 100 नहीं आ रहा है या 200 का पेपर है सपोज, तो 180 नहीं आ रहा है तो 140 आएगा ना। बट ये किस एरिया का 140 है वो भी पता चल जाएगा कि 60 कहाँ पे लैक कर रहा है। हाँ, कहाँ लैक कर, हाँ। एंड वो कॉन्फिडेंस बहुत होता है। लाइक आई सेड कि इतने मॉक्स करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा आई विल बी एबल टू परफॉर्म। बिकॉज जब होता है ना कि देयर वर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु टोल्ड मी कि जब कंप्यूटर पे देते हैं सिंस मॉक, ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर लैक करता है क्योंकि इट्स ऑल वो बेस, तो कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो हाँ वो लैक करता है थोड़ा। लाइक देयर वर फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनके ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। लाइक ऐसा हुआ था उनके जब उनके आंसर ही आए तो ऐसा था कि उनके ऑप्शन वो नया एग्जाम था तो आई थिंक, बट अभी थोड़ा होता है, अभी वो सब इशू होता है। तो आप बेस्ट चीज कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस करो ऑनलाइन, तो आपको पता लग जाएगा क्या पैटर्न है। एग्जाम फैक्टर पे भी जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आपने देखा है कि नहीं देखा, आई एम नॉट श्योर, पर हम लोग आपको एक एक्सप्लोर करने को उसको देंगे और आप एक मॉक भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो। एंड हम स्टूडेंट्स तक भी आपका जो कमेंट्स होंगे, जो थॉट्स होंगे उस पर वो भी देखेंगे। बट वो एक रियल टाइम जो सिनेरियो है एनटीए का, जिस तरीके से आपको पोर्टल मिलने वाला है, ठीक है, टाइमर के साथ और जो ऑप्शंस रहेंगे वो वैसे ही डिज़ाइंड है। आपको एकदम एग्ज़ाम लाइक फीलिंग आएगा कि आप जब दे रहे हो मॉक टेस्ट तो आपका टाइमर 60 मिनट का शुरू हो गया है। आप जब स्टैक सेलेक्ट करते जा रहे हो, सेव एंड नेक्स्ट, समटाइम देयर आर ऑप्शन फॉर रिव्यूज़ ऑल्सो कि आप क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हो, मार्क एंड रिव्यू। तो जो सारे फीचर्स आपको लास्ट डे मिलने वाले हैं, सेम इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर रहेंगी, तो वो आप यहाँ पर जो एग्ज़ाम फैक्टर के प्लेटफॉर्म पे जा कर के अभी जो है उसको एग्ज़ाम से पहले ही सारा एनालाइज करके जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे एनटीए के मॉक जब जिस दिन होता है वहाँ पर टेस्ट, तो उस दिन आपको स्कोर कार्ड नहीं मिलता है, बट हमारा आपका जो स्कोर कार्ड है वो इंस्टेंटेनियस रहेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा, आपका एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने होगा, आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। क्योंकि इसका जो पर्पज़ है ना वो लास्ट डे के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपके पास पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, क्वेश्चन वाइज आपका कितना टाइम स्पेंड किया, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किस एरिया से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन भी मिलेगा कि दीज आर योर वीक एरियाज जिसको आपको कवर करने की जरूरत है। तो आप उन्हीं एरियाज को जा कर के बुक से रिवाइज कीजिए। देखो क्वेश्चन गलत होने के 2-3 रीजन हो सकते हैं, तो एकदम ब्लैंक आपने तुक्का मारा है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ था बट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए, तीसरा कि आपसे वो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही मिस हो गया है, ठीक है। यही 2-3 रीजन रहते हैं। या अगर कोई न्यूमेरिकल है तो हो सकता है कि आपको सब कुछ भी आता था, कोई कैलकुलेटरी
कैलकुलेटरी मिस्टेक हो गया तो वो हो सकता है, बट वो सिली मिस्टेक्स को तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट जहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है वहाँ तो वो तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा ना किताब में जाके कि ये लाइन लिखी कहाँ पर है। और मॉक्स में क्या होता है ना, जो एग्जाम फैक्टर के मॉक होंगे उसमें वो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे। तो आपको ना थॉट प्रोसेस भी मिलेगा कि एनसीईआरटी में पैराग्राफ्स हैं, बट उस पैराग्राफ के जो चंक्स होंगे उनसे क्वेश्चंस कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे मिक्स करके पूछा जाता है। हिस्ट्री का जो है एक इवेंट जो है 1940s का है और दूसरा इवेंट 1920s का है, उनसे मिक्स करके कैसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो कि डिफरेंट चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो वो मॉक के साथ आपको प्रैक्टिस होगी कि हाँ आपने टोटलिटी में जो है सिलेबस को कवर किया है, आप इंटरलिंकेजेस डेवलप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इन दिस वे मॉक्स हेल्प यू। आपके सामने प्रूफ है, सही में प्रूफ है, मतलब लिटरली कि आप 100% मतलब इसका मतलब यह है कि आपसे ज़्यादा किसी भी बच्चे ने स्कोर नहीं किया है। जितने भी बच्चों ने CUT दिया 100% मीन्स किसी भी बच्चे ने आपसे ज़्यादा स्कोर नहीं किया है। ठीक है, तो ये उसका प्रूफ है। और एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 में नहीं, 3 सब्जेक्ट में अगर ये लेकर के आ रहे हैं तो आपको भी आई थिंक इनसे मोटिवेशन मिलना चाहिए। और इनका स्ट्रेटजी आप अपने कस्टमाइज तरीके से ऑप्ट कर सकते हो, नॉट इन टोटलिटी, बट जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सनल सिनेरियो में ये फिट बैठेगा तो आप उसको एज अ टेक अवे ले सकते हो इस टॉक से। तो मॉक टेस्ट की इतनी बात हो ही गई है, तो हम लोग जो है एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी कर लेते हैं कि आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे किए थे। जैसे बच्चों को क्या माइंड में चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि आपको अब पूरा प्रोसेस एंड टू एंड पता है। तो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट देम कि क्या क्या उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहना चाहिए, कैसे वो उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आगे जो है अपना CUT जर्नी कंप्लीट करें। तो जो अकॉर्डिंग टू जो NTA होता है कि आपने जो सब्जेक्ट्स 12th में लिया आप सिर्फ वही उनको लिए अपियर कर सकते हो। सो दिस इज लाइक जो रिलीज हुई थी गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू NTA, सो इट वाज द सेम फॉर अस। सो आई से सिलेक्शन में जो आपने दिए 12th में, इट्स वेरी हेल्पफुल कि आपने सेम सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। इट्स जस्ट अबाउट द कोर्सेज कि आपको लाइक जैसे इफ़ यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, बी एक्चुअली अवेयर ऑफ उस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर BCom ऑनर्स मैथ्स या अकाउंट्स कंपलसरी होती है। लाइक BCom ऑनर्स के लिए मैथ्स एंड अकाउंट्स इज कंपलसरी। मैथ्स और अकाउंट्स दैट इज काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग अ टोटल स्कोर। सो जैसे इकोनॉमिक्स में होता है कि मैथ्स कंपलसरी होती है। सो दिस मैथ्स कंपलसरी इज समथिंग आई डिडंट नो पहले। लाइक मेरे को ऐसे प्रिपेयर करते करते पता लगा कि ओ मैथ्स भी कंपलसरी है। सो दैट मीन्स आई नीड टू डिवोट माई टाइम टू मैथ्स ऑल्सो। सो एक चीज़ ये होती है बस कि आपको जो भी कोर्स करना है परस्यू, आप थोड़ा फिगर आउट करो कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली उसके लिए कंपलसरी है तो उस पर और फोकस करो। तो वो एक बार एक रिसर्च जो है बच्चों को करना। इसमें देखो हम भी आपको ना एक हेल्प कर रहे हैं, हम रेगुलर वीकली ना हम बच्चों के लिए एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं। तो वो पास्ट 1 ईयर से चल भी रहा है, यूट्यूब पे लाइव सेशंस हैं, उसमें हम डिफरेंट बच्चों के लाइव डाउट सेशन लेते हैं कि बच्चों का क्राइटेरिया उस वेबिनार का बस पर्पज़ यही है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में हम उनको हेल्प करें। ठीक है, बट अभी तो जैसे फॉर्म लॉक हो चुका है तो करेक्शन विंडो भी जा चुकी है, तो बच्चों ने मोस्टली तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ही लिए हैं। ठीक है, बट जो भी व्यूअर रहेगा आगे के लिए भी, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि हाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक NTA की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, बट लाइक आपको रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी। उसको उसमें लाइक देयर इज नो ऐसे एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं होगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी एंड यू कैन फिगर आउट। बाकी वीडियोस वगैरह सब होते हैं टू हेल्प यू आउट। सो बस फोकस ऑन दैट पार्ट थोड़ा। डोंट बी लाइक कि आप इतना ज़्यादा स्टडिंग में इन्वॉल्व में कि आपने रिसर्च ही नहीं करी बाकी आगे। ऑल्सो आई लाइक टू ऐड कि BBA, BFIA, BMS ये नए कोर्सेज हैं। एज ए प्रीवियसली मेंशन इसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव इट। एंड लाइक वाइल द कैलकुलेशन ऑफ योर टोटल स्कोर, लाइक मैथ्स और जनरल टेस्ट के मार्क्स कैलकुलेट होते ही हैं। तो जनरल टेस्ट पे भी बहुत इम्पोर्टेंट
हाँ, लाइक अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप जनरल टेस्ट पे फोकस करो. अगर आप नहीं कर रहे तो इट डिपेंड्स कि अगर आप लाइक जैसे इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन आर्ट्स कोर्सेज देन जनरल टेस्ट इज नॉट कंपलसरी फॉर यू. सो इवन इफ यू लीव दैट पार्ट थोड़ा, इट वोंट रियली इफेक्ट योर स्कोर. सो यू नीड टू बिल्ड योर स्कोर मेनली. आपको ऐसा करना है कि आप इतना एफर्ट डालो कि आपके जो भी 4 सब्जेक्ट्स है उसमें फुल है. लाइक आप ऐसा करो तो आप उस फोकस सब्जेक्ट वाइज दीजिए. लाइक यू नीड टू फिगर आउट कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है. एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर वीक और लाइक आपके वीक और वो पॉइंट्स आपको पता होते हैं. सो दैट इज समथिंग. तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मॉक टेस्ट देना है, गाइडेंस चाहिए तो क्रैश कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, CUT एग्ज़ाम दीजिए. उसके बाद क्या रहता है प्रोसेस? एग्ज़ाम के बाद छुट्टियाँ, मज़े मज़े नहीं रहते हैं. एंजाइटी स्कोर का एंग्जाइटी रहती है स्कोर कार्ड आने का. NTA की तरफ से आपको शायद परसेंटाइल और एक नॉर्मलाइज स्कोर मिलेगा. दो चीजें एक्चुअली आपको. पहले आंसर की हाँ, आती है, उसके बाद वी गेट लाइक आर स्कोर, रॉ स्कोर, लाइक उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड देन आफ्टर सम टाइम द NTA रिलीजेस द आंसर की. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर की NTA आपको रैंक्स बताती है अपने. एंड उसके बाद लाइक यू हैव टू सेलेक्ट योर कोर्सेज. अभी तक आपने कोर्सेज नहीं सेलेक्ट करे. एट दिस पॉइंट यू सेलेक्ट योर कोर्सेज एंड आफ्टर दिस लाइक फिर फाइनली तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट एंड ऑल आती है एंड यू गेट कि तुम्हारे कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है. सो एक्सप्लेनिंग ऑन दैट पार्ट, लाइक रैंक्स आती है ना. सो एक ये फ़ायदा होता है रैंक्स का कि जैसे आई रिमेंबर मेरी BCom में अराउंड 200 कुछ रैंक थी. सो लाइक उससे मैंने असेस कर लिया था कि इतनी सी इस कॉलेज में, इतनी सी इस कॉलेज में, तो मेरे इसमें हो जाएगा. लाइक सो ऐसा ही होता है कि हेल्प करता है असेसमेंट. उसके बाद द मेन प्रोसेस कम्स कि आपका जो पोर्टल होता है उस पर आपको जो भी आपका स्कोर है और उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी सारी आ जाती है. लाइक इस कॉलेजेस में इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो तो वो सारी लिस्ट आ जाती है खुद. एंड यू हैव टू फिल योर प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट. एंड आई थिंक प्रेफरेंस सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी थोड़ा सा टफ टास्क बिकॉज बहुत लोग उसमें गलती कर देते हैं. क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने जैसे लिस्ट भरी है कॉलेजेस की, सो अगर आपका ऊपर से शुरू होती है वो लिस्ट, अगर आपको ऊपर से कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो नीचे के सारे कॉलेजेस ऑटोमेटिकली हट जाएंगे क्योंकि वो आपने प्रेफरेंस दिया ना कि ये मेरा 10th प्रेफरेंस था. तो अगर आपको 10th का मिल गया तो अब आगे के सारे आपका हट गया ना, क्योंकि आपको तो अपर. हाँ, तो उसमें थोड़ा डिटेल और उसमें थोड़ा एक्यूरेसी से भरना पड़ता है कि यू आर रेडी कि हाँ ये सारे कॉलेजेस हट जाए. हम लोग इसमें मतलब स्टूडेंट को हेल्प आउट करते रहेंगे बाद में भी, बट अगर ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं रैंडम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है. तो जो आप पहले पेन पेपर लेके अपना एक लिस्ट बनाइए और आपको पता होना चाहिए कि आप ये लिस्ट क्यों बना रहे हैं, कोई कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, 10th, 20th प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं. और वो लिस्ट में आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस हमें, जितने ज़्यादा कॉलेजेस हम पुट कर सकते हैं. अगर 300 की लिस्ट है तो आप 300 के 300 पुट करिए समवेयर अराउंड द अदर. बट जो पहले 30-40 कॉलेज होंगे उसको आप अच्छे से प्रेफरेंस करके जो है पुट कीजिए. वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपके सिलेक्शन का. और हम लोग भी ना स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से कैंपेन चला रहे हैं जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप 6 कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर हंसराज, किरोड़ीमल और SRCC, हिंदू ऑब्वियसली. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया वीडियो के. तो दिस कैंपेन नेम इज़ आप दिखाओ दम, फीस भरेंगे हम. तो इसमें रहता क्या है कि अगर बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अगर महापैक जो हम बोल रहे हैं जिसको महापैक टेस्ट सीरीज़ या महापैक का क्रैश कोर्स लेता है, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हमारे साथ करता है, तो हम उसको जो है अगर वो एलिजिबल होता है इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर का फीस वी विल बी पेइंग फ्रॉम आवर एंड. That's a really great initiative. तो ये भी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अगर उसके पास है तो वी डू नॉट वांट कि वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए. तो हम उसको फर्स्ट सेमेस्टर तक वी वुड बी हेल्पिंग. और आगे भी जो है फिर आई थिंक हम एक बार उसको चलना सिखा देंगे तो वो दौड़ने लग जाएगा. ठीक है, तो कॉलेज तक पहुंचाने का जो है मतलब हम एंड टू एंड एक प्रोसेस सेट करें हैं उनके लिए. लाइक पूरी गाइडेंस, इस वाला ये फेज होता है जो सबसे एंजाइटी वाला होता है. सो ऐसी फेज में गाइडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गाइडेंस फ्रॉम समवन जिसको सब कुछ आइडिया हो इज़ आई थिंक रियली हेल्पफुल. तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो 100% CUT डेडिकेटेड ही है. ठीक है, कि फुल्ली फोकस ऑन CUT. ठीक है, 13 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड को कवर कर रहा है, जो बच्चों का जो है
जितने भी ऑप्शंस उसके एक्सप्लोर हो सकते हैं उन डोमेन सब्जेक्ट के साथ, इंग्लिश जीटी, तो हम लोग वो कवर कर रहे हैं, और क्रैश कोर्स में भी हम लोग 10 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 1 मंथ तक अवेलेबल रहेगा आपके पास। मई तक हम लोग सपोर्ट करेंगे और जून जुलाई में काउंसलिंग में आपको सपोर्ट करेंगे, और फीस भरने में भी सपोर्ट करने वाले हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 6 कॉलेजेस जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहाँ पर आप जाते हो, ठीक है। एक और मेरे पास क्वेश्चन रहता है बच्चों का, जैसे ट्रेड्स के बारे में बात की जाती है कि 100 परसेंटाइलर के क्या ट्रेड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि उनको वान्या बनना है किसी को, अगर कोई गर्ल चाइल्ड देख रहा है इसको, वो बोले कि आई वांट टू बी लाइक वान्या और मेरा स्कोर कार्ड कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए, या शिवानी, ठीक है। तो आप अपना क्या पर्सनल सजेशन उनको देना चाहेंगे कि आप ये करोगे तो ऐसा बन सकते हो और आपका स्कोर कार्ड ऐसा हो सकता है, आप ऐसे कॉलेजेस में लैंड कर सकते हो, ठीक है। क्या मतलब व्हाट वुड बी दैट एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस? One advice is focus on details. Like जब मैं 12th में थी तो मैं स्टार्टिंग से आई वाज वेरी डिटेल ओरिएंटेड, सो लाइक जैसे फोकस ऑन डिटेल्स, पहले लाइक स्पेशली जैसे लाइक आई मेंशन एनसीईआरटी इज गुड। तो जब आप पढ़ रहे होते हो, सो इट वाज लाइक अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं एक चैप्टर इतना थॉरली पढ़ रही हूँ कि मेरे को सब कुछ आता होगा उस चैप्टर में। सो दैट हेल्प मी रियली, बिकॉज एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, सो आई वाज वेरी फेमिलियर विद दैट। ठीक है। सो अब आपने पूरा डिटेल से पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया। फिर सेकंड इज स्पीड। आपको स्पीड बनानी है, आपको एक शेड्यूल बनाना है, लाइक ये आपको लाइक पूरे दिन में लाइक यू हैव टू क्रिएट अ लाइक नॉट अ रिगरस शेड्यूल ऑब्वियसली, बट ऐसे नहीं होना कि यू गेट सो डिस्ट्रैक्टेड कि लाइक अच्छा आज पढ़ लिया तो छोड़ो, कल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एज पीपल से कंसिस्टेंसी इज द की। सो यू नीड टू मेक अ गुड शेड्यूल कि आई एम कवरिंग दीज सब्जेक्ट्स इन दिस इज माई टारगेट टिल लाइक दिस डेट, एंड ये टारगेट मेरे को अचीव करना ही करना है, वो मैं अभी गुड शेड्यूल एंड टू इंक्रीज द स्पीड, एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी ओवर द शेड्यूल। मतलब ऐसा नहीं कि शेड्यूल अच्छा बना और उसको चिपका लिया, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली चीज, लाइक वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड मे बी। सो वो चीज लोगों के लिए वर्क करती है। सो आप जितना भी टाइम डिवोट करो, डिवोट इट स्मार्टली, दैट इज इट। तीन चीजें जो टेक अवे हैं कि आपको डिटेल्स को जो है एक बार ध्यान रखना है कि पूरा डेप्थ तक आप कवर करें। दूसरा, एक शेड्यूल आपका फ्लेक्सिबल हो सकता है वो शेड्यूल, बट उसके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको उसके अंदर थर्ड चीज कंपोनेंट कंसिस्टेंसी ऐड करना है कि रोज रहे, फ्लेक्सिबल रहे, रोज रहे, पर ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 दिन तो फ्लेक्सिबल था, तीसरे दिन अल्ट्रा फ्लेक्सिबल होके और बाहर ही हो गया, ठीक है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा, कि जो आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा ट्रेड? देखो मैं अपने लाइक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने लाइक ऐसे एज सच एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं करा था, मैंने सिर्फ मॉक्स पे फोकस करा था। मॉक्स जितने मैं गलत क्वेश्चंस करती थी आई यूज्ड टू मार्क देम, ताकि लाइक वो वाले मैं दोबारा सीयूईटी में गलत ना करूं। सो दैट वाज द थिंग, एंड आई यूज्ड टू टाइम माय मॉक्स, ताकि उतने टाइम में मेरा मॉक खत्म हो जाए, ताकि स्पीड इज द मेन फैक्टर इन सीयूईटी। Fourth, the addition is time bound mock practice. You can add. तो 4 टेक अवे जो हम दे रहे हैं, तो 1 is detailed, then a flexible or maybe a rigid schedule, that depends. Third one is consistency with the schedule, and fourth is a time bound mock practice, जो आप जितना ज़्यादा दे के जाएंगे, ठीक है, उतना ही ईज रहेगा आपको एग्ज़ाम डे पे, ठीक है। जैसे वो होता है ना कि स्वेट एज मच एज यू कैन इन प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट ब्लीड इन वॉर, जो एक राइम रहता है। तो हम लोग जो है आपके लिए आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ, और इसी तरीके के जो है आप अच्छे कॉलेजेस में जाएं, टॉपर बने, और मैं आपका पॉडकास्ट जो है नेक्स्ट ईयर करना चाहूँ, ठीक है। तो हमारी तरफ से आशा रहेगी, हम आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं, बीट प्रैक्टिस, क्रैश कोर्स, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, 1-on-1 मेंटरशिप, तो जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिएगी तो आप examfactor.com पे भी जा सकते हैं। हमारे वहाँ पर आपको जो है हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको बात करनी है डायरेक्टली, किसी मेंटर से बात करनी है, काउंसलर से बात करनी है, एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज़ का, तो हम भी आपको वहाँ पर भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, और आपके कुछ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू हैव?
Yeah, so like don't get like too stressed about it. It's the syllabus you've already done. तो बस consistent रहो because that is the key. तो कंसिस्टेंसी पे हमने इतनी बात कर ही ली है, तो बच्चों को बता तो हम बहुत ज्ञान दे देते हैं कि कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे। मतलब अगर उनको जानना है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट या हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑन दैट? देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक रैंडम स्ट्रेस एनजाइटी तो होती रहेगी इस पूरे 1 मंथ में, बट यू नीड टू सी कि तुम्हारा अगर कॉलेज कितना अच्छा कॉलेज मिल गया तो दैट शुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, दैट शुड बी बिहाइंड, एंड लाइक यू शुड पुश योर सेल्फ, लाइक इट्स दिस 1 मंथ जो तुम्हें लाइक अगले 3 साल के लिए सेट कर देगा. सो दैट यूज टू बी मोटिवेशन कि मतलब अच्छा कॉलेज तो चाहिए ही चाहिए. सो ओके, तो देयर शुड बी सम एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको दिखे और इन्विजन करो उसको और लगे रहो. अंदर से you can't do it. Yeah, same. It was like the same for me कि ये motivation तो थी. Plus I was like, you know, I have been a topper in school. I was like, I have to hold that reputation and I cannot go wrong. So वो reputation की बात I remember वो बहुत ज़्यादा थी मेरे में कि I cannot go below. Like it's not like I cannot, like these are the 2 months. अगर मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, maintain this reputation, अगर मैं इसमें falter कर गई तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ उसका. So that was a motivating factor. Plus consistency, like there are a lot of distract even in these 2 months, you know, जब boards खत्म होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अभी तो खत्म हुआ है, you know, we can अभी थोड़ा chill करते हैं थोड़ी देर बाद. बट ये मेरे माइंड में कभी भी नहीं था. लाइक फ्रॉम द स्टार्ट में थोड़ा थी कि आई यूज्ड टू ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बी इट गैदरिंग्स, बी इट गोइंग आउट. आई यूज्ड टू मिनिमाइज इट. ऑब्वियसली मजे करते थे बट इट वाज अ बैलेंस. सो यू हैव टू डू दैट बैलेंस योरसेल्फ. नो वन कैन पुश यू टू डू दैट. तो आपको वो खुद से अंदर से आना चाहिए. यू नीड टू फिगर आउट, यू नीड टू मेक योर माइंड कि हाँ दिस इज़ माई वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब वो इंट्रिंसिक वो आ जाएगी मोटिवेशन, देन इट्स ऑल फाइन, देन आप खुद कर लो. तो इनका जो कहना है कि इंटरनल मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एक रिजल्ट देगा, बट एक्सटर्नल मोटिवेशन रहेगा तो दैट विल डाई आउट सून. तो आप एक वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओगे थोड़ी देर के लिए और एक दिन बैठ के पढ़ोगे और 10 दिन फिर नहीं पढ़ोगे. पर आई थिंक अगर अंदर से मोटिवेशन होगा, अंदर से जाने की इच्छा होगी और कुछ करने का इच्छा होगा तो आई थिंक वो रहेगा. जैसे हम मेरे बचपन में एक एग्जांपल बताते थे इसका कि अगर गधे की पूंछ पे ना अगर एक बॉम्ब का लड़ी बांध दिया जाए, जो पटाखा बॉम्ब, तो उसको जलाएंगे तो होता क्या था ना कि जब तक वो बॉम्ब बजेगा तब तक तो वो बहुत तेज़ दौड़ेगा, बट जैसे ही वो बंद होगा ना बजना तो फिर वो रुक जाएगा. तो वैसा ही कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन वैसा कुछ काम कर रहा होता है. बट इंटरनल मोटिवेशन जो है वो उसका एक इंटरनल ट्रेट है, इंट्रिंसिक पार्ट है उसका, जो उसको पुश करेगा डेफिनेटली. सो थैंक यू वान्या, थैंक यू शिवानी. ठीक है, एंड आई रियली इंजॉयड. ठीक है, तो आप लोगों को भी जो है शुभकामनाएं आगे के लिए. ठीक है, मेरी तरफ से जो है बेस्ट विशेष, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और मिलते हैं हम लोग. क्लासेस में भी मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में भी मिलेंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय.